Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस थर्सडे सेशन। आप सबको स्वागत है आज के सेशन में। पिछले सेशन, दैट इज लास्ट सेशन, वी एंडेड एट श्लोका नंबर 2.64 and there we discussed about the shloka. पिछले सत्र हमने श्लोका 64 दूसरे अध्याय का डिस्कशन स्टॉप किए थे। The shloka was राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति. The notable words were prasadam अधिगच्छति. We will get the mercy of the Lord. And how will we get the mercy of Lord? भगवान का दया या प्रसाद कैसे मिलेगा? By becoming free from all attachment and aversion. राग द्वेष विमुक्तैर तु. तो विषयान इंद्रियस चरण. One who can control his senses, the practice of regulated principles of freedom. So atma vashye, and we came across the term videyatma. Videyatma, we learned Videyatma as one who follows regulated freedom. That is the meaning that Prabhupada gives. जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो संयम चाहिए उसको जो पालन करता है वो विधेय आत्मा है. So some more points in 2.64 before we start with 2.65. So we talked about how better than determination based आध्यात्मिक progress is purification based adhyatmic progress. Why? Because purification, the sensual contemplation completely stops. जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो इंद्रिय विषयों में हम हमारा ध्यान एकाकृत नहीं करेंगे. That means it becomes a way of life for a devotee. वो एक भक्त के लिए एक जीवन का मार्ग शैली बन जाएगा. लेकिन डिटर्मिनेशन से क्या होगा? डिटर्मिनेशन से भी yes we can go, हम स्थैर्य से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लिमिटेशन है? We only stop the sensual contemplation, so it requires an extraneous effort. हमें एक बाहरिक एक एफर्ट चाहिए उसको दमन करने के लिए. लेकिन जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो बाहरिक कोई भी एफर्ट नहीं चाहिए हमें इंद्रिय दमन करने के लिए. So we must understand some limitations restrict us. कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें मतलब एक बाउंड्री पे रेस्ट्रिक्शन देता है, और some limitations protect us. कुछ ऐसे नियम होते हैं आध्यात्मिक हमारे जीवन में जिससे हमारा फायदा होगा, जिससे हमें रक्षण मिलेगा. So intelligence is to know the difference between these two. कौन सा रेस्ट्रिक्शन करने के लिए है और कौन सा प्रोटेक्शन के लिए है. What is for protection and what is for restriction. So it's like a farm without a fence. अगर एक खेत में हमने फेंस नहीं डाला है तो क्या होगा? It is prone for intrusion. तो बाकी लोग या पशु प्राणी आके उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो पशु प्राणी हमारे इंद्रिय विषय है, हमारे सोच है, जो गलत सोच है वो हमारे अंदर आके हमें नुकसान पहुंचा सकता है. So Krishna answers in the shloka 2.64. We discussed that he answers Arjuna's
Quarion Vrajeta Kim. How does he conduct himself? How to, and Krishna discusses about how to go about our duties without distraction in a world full of temptation. भौतिक जगत में हर कदम हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए माया आह्वान करती है. सो पदम पदम यत विपदाम, लेकिन एक भक्त के लिए वो कोई मायने नहीं रखता, न तेषाम. सो Krishna is discussing from sloka 2.64 to 2.71. He goes on to discuss about how should a devotee conduct himself. कैसे एक भक्त को अपनी जीवन शैली बनाना है और कैसे उस रास्ते पे चलना है. So, and it shows the process of how to get higher taste. अब तक हमने बात किया था आध्यात्मिक रुचि, higher taste, that is going above material taste. कैसे वो प्राप्त होगा इस श्लोक में हमने सीखा. And we must understand, जब हम all these restrictions that are there, what is this restriction or regulation for? When we go to a doctor, the doctor, when he diagnoses a disease, he gives us some restrictions in food and life habits. Now, why is the doctor giving this? The doctor is giving this for the patient's own benefit. And एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है, रोगी जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जब रोग का मतलब डायग्नोसिस करता है, फिर वो बोलता है आपको ये नहीं खाना है, आपको ऐसे नहीं करना है, तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस देता है. वो किस लिए दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है ताकि रोगी बहुत जल्द गुणमुख हो जाए. तो ये रोगी को समझना चाहिए और उस रास्ते पे उसको या उस रेस्ट्रिक्शंस का पालन उसको करना चाहिए. So we will move forward for today's shloka. We're going to do 2.65. Now, what happens when Lord Krishna bestows his mercy on us? जब भगवान कृष्ण अपने हेतु रहित दया हमारे ऊपर प्रसाद के रूप में देते हैं तो क्या होता है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर अस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते. So for one who is situated in divine consciousness, प्रसन्न चेतसो, जो एक आध्यात्मिक चेतना में स्थित है, the threefold miseries of material existence exist no longer. तो सर्व दुःखानां हानिर अस्य उपजायते, मतलब इस भौतिक जगत के त्रिगुण उसके ऊपर लागू नहीं होता है. In such a happy state, one's intelligence soon becomes steady. बुद्धि पर्यावतिष्ठते. तो what is called as intelligence becomes steady. उसका बुद्धि स्थिर हो जाएगा. तो जब भगवान की हेतु रहित दया हमें मिलेगा तो हमारी बुद्धि स्थिर प्रज्ञा हो जाएगा, भगवान के ऊपर केंद्रीकृत हो जाएगा. So there is no purport for this shloka because it is self-explanatory. We move on to shloka number 66, and then together I will take the points for this. न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम. अशांतस्य कुतः सुखम. Very important to understand this. बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझना. One who is not in transcendental consciousness, अगर कोई दिव्य चेतना में स्थित नहीं है, can have neither a controlled mind nor steady intelligence. दिव्य चेतना जब हम कल्टीवेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका मन उसके वश में नहीं होगा, उसका बुद्धि स्थिर नहीं होगा. तो उससे क्या होगा? Without which there is no possibility of peace. और जब मन विचलित है और जब बुद्धि अस्थिर है तो शांति तो दूर की बात है जिंदगी में. And how can there be any happiness without peace?
और जब शांति नहीं है, अशांतस्य कुतः सुखम, शांति नहीं है जीवन में, तो सुख की बात तो हम मतलब दूर की बात होगी, वो तो हमारी जिंदगी में आएगा ही नहीं. सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज reiterating. Unless one is in Krishna consciousness, जब तक कोई कृष्ण प्रज्ञा में नहीं है, there is no possibility of peace. तो हम सब, we are all trying to find peace. United Nations is formed so that everything is peaceful. But Prabhupada is very categorically stating here, even Krishna is categorically stating, कृष्णा और प्रभुपाद दोनों यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक कृष्ण भावनामृत में हम स्थित नहीं है, शांति दूर की बात है, हमारी जिंदगी में शांति नहीं आएगा. सो इन द 5th चैप्टर, बाद में हम जब हम पढ़ेंगे आखिरी श्लोका 5.29, द श्लोका इज कॉल्ड एज पीस फॉर्मूला. तब हम पढ़ेंगे 3 ऐसे चीज जिसको हम याद रखने से हमें शांति मिलेगा. 3 things by remembering which we will get peace in our life. That is called as peace formula. And when one understands that Krishna is the only enjoyer, तो पहला रिक्वायरमेंट है, हमें समझना चाहिए कि सारे मतलब भोग का हकदार केवल भगवान श्री कृष्ण है, और हमें सिर्फ उनके इंस्ट्रूमेंट बनके उनके संतृप्ति के लिए हमें कार्य करना चाहिए, और उनके संतृप्ति में ही हमारा तृप्ति होगा. By his satisfaction, the jiva will be satisfied. He is the real friend. तो पहला तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम था. फिर सुहृदम सर्वभूतानाम है. सुहृदम सर्वभूतानाम मतलब वो हर एक जीव का मित्र है, हर एक जीव का वो भलाई चाहते हैं. और he also is सर्वलोक महेश्वरम, मतलब सारे जो हमें भौतिक या आध्यात्मिक लोक में दिखाई देगा, उस सब का मालिक भगवान श्री कृष्ण है. तो हर भोग का हकदार भगवान श्री कृष्ण है. भोक्तारम यज्ञ तपसम, हर जो चीज है इस लोक में और परलोक में, वो भगवान उसका मालिक है. सर्वलोक महेश्वरम, इज मास्टर ऑफ इट. देन सुहृदम सर्वभूतानाम, तो हर जीव जंतु का वो एक मित्र है, ये हमें समझना चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगा. ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, दैट्स व्हाट द श्लोका सेज. ये जानने से हमारे जिंदगी में शांति आएगा. So disturbance is due to want of an ultimate goal, and one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and without peace. हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कितने भी कुशलता से हम कार्य करेंगे, हम शांति नहीं पा पाएंगे जब तक हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे. Till Krishna is not the center of our life, of our activities, of everything in our life, we cannot be peaceful. So no peace means no happiness. It's very, very clear. जब शांति नहीं है तो सुख का बात नहीं हो पाएगा. So Krishna consciousness is a self-manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. Krishna भाव व्यक्ति ही कृष्ण भावनामृत स्थित व्यक्ति ही शांति पा सकता है और वही सुख पा सकता है, वरना सुख का कोई गुंजाइश हमारी जिंदगी में नहीं है. So what we have learned in shloka 65 and 66 we'll just revise. Our intelligence is our guard. हमारा बुद्धि ही हमारा मतलब बॉडी गार्ड है, तो उसको हमें पर्याप्त रखना है. We must always keep our intelligence sharp in terms of spirituality. And we need to guard this intelligence with spiritual inputs, not being street smart, not being smart in terms of material terms. It helps, but if we really want, real intelligence is to be spiritually intelligent. And how can we be spiritually intelligent? How do we get this spiritual inputs? By reading Bhagavad Gita, by following the instructions of a spiritual master, by chanting Hare Krishna mantra, by listening to lectures of devotees, we can get spiritual inputs. तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें जो मार्गदर्शन चाहिए कहाँ से मिलेगा? भगवद गीता पढ़ने से.
गुरु का जो आदेश है उसको पालन करने में हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से, इट्स द सिंपलेस्ट वे इन कलियुगा. Simply by chanting Hare Krishna mantra, you will get all the benefits on all the facilities that we require for spiritual progress. आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो भी हमें व्यवस्था चाहिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए, वो भगवान हमें दे देंगे केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से. सो इट्स वेरी पावरफुल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र. एंड ऑफ कोर्स और ऐसे आध्यात्मिक भगवत गीता आधारित लेक्चर्स को सुनने से आपको मार्गदर्शन मिलेगा. सो 2.65 प्रसादे सर्व दुखानाम. तो व्हाट इट इज ट्राइंग टू गिव अस, श्लोका एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वन रिसीव्स द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड. प्रसाद मिल गया, तो प्रसाद मिलने से क्या होगा, तो उसका फायदा क्या है, उसमें मुझे क्या मिलेगा. सी, people are always looking at what is in it for me. वो एक फॉर्मूला है कुछ भी करने के लिए. हमें कुछ भी करना है जिंदगी में तो बहुत एक लोग यही फॉर्मूला यूज करते हैं, उसमें मुझे क्या मिलेगा, what is in it for me. So Krishna is also explaining what happens when you get the mercy of the Lord. भगवान का प्रसाद, भगवान का दया मिलने से आपको क्या मिलेगा, ये वो यहाँ पे विस्तार से बता चुके हैं. फाइनल बेनिफिट क्या है, बुद्धि पर्यावतिष्ठते, मीन्स इंटेलिजेंस बिकम्स रॉक सॉलिड, विचलित नहीं होगा, इट बिकम्स अनशेकेबल, यू आर वेरी फिक्स्ड विद योर इंटेलिजेंस. सो वी प्रीवियसली लर्नड आल्सो, कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट control your having control of intelligence rather than mind and sense, because when intelligence is channelized properly, जब बुद्धि को हम मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार लेके जाते हैं, तो वो मन को कंट्रोल में रखेगा, और जब मन कंट्रोल में रहेगा हमारे सारे इंद्रिय भी कंट्रोल में रहेंगे. सो स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस आर द इलेक्ट्रिकल फेंसेस दैट प्रोटेक्ट अस. जो आध्यात्मिक हमें मार्गदर्शन मिलता है, ये करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र जपा करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, we must chant Hare Krishna mantra, we must read Bhagavad Gita, we must go to the temple and take darshan, we must attend programs of the temple. All of it is spiritualized programs. So आध्यात्मिक ऐसे गतिविधियों में हमें उलझना चाहिए. तो these are scriptural injunctions, मतलब हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये करो और ये मत करो. No meat eating, no illicit sex, no gambling, no intoxication, and many other no's. Get up early, don't get up late, take bath, don't be without bath throughout the day. So some scriptural injunctions are there. All these are for our benefit. By following this, we can make progress in spiritual life. And all this can be got by association of devotees, reading Bhagavad Gita, and chanting Hare Krishna mantra. Because when we chant Hare Krishna Maha Mantra, we are touching Krishna, and Krishna is absolute. जब हम हरे कृष्ण मंत्र जपा करते हैं तो हम कृष्ण को टच कर रहे हैं, एंड कृष्ण एब्सोल्यूट है, मतलब हमें आध्यात्मिक ज्ञान ऑटोमेटिकली मिल जाता है केवल हरे कृष्ण मंत्र जपा करने से. ऑफ कोर्स वी मस्ट रीड भगवत गीता, because we cannot chant like Haridas Thakur 22 hours 24 hours in a day. अगर कोई कर सकता है उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. 24 घंटे हम हरे कृष्ण मंत्र जपा कर सकते हैं, तो उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. लेकिन क्योंकि हम नहीं कर पाते, because we cannot do, Srila Prabhupada has given us many programs for the day. Get up early in the morning, attend मंगल आरती, सुबह जल्दी उठिए, मंगल आरती के लिए आइए, गुरु का मतलब गुरु अष्टकम गाइए, नरसिम्हा कीर्तन गाइए, तुलसी कीर्तन गाइए, तुलसी में पानी दीजिए, फिर आप जपा कीजिए 2 घंटे, 16 माला कीजिए, 16 rounds, which takes about 2 hours. Then attend दर्शन आरती, गुरु पूजा, दर्शन आरती, गुरु पूजा में भाग लीजिए, भागवतम सुनिए, फिर भागवतम या भगवत गीता पढ़िए, तो उसके बाद आप कृष्ण की सेवा में पूरा दिन रहिए. अगर इफ यू आर प्रोफेशनली अटैच्ड आउटसाइड, then you can spiritualize your activities, and there are ways of doing it. We already discussed in previous sessions. पिछले सत्र में हमने बहुत सत्र में हमने डिस्कस किया कैसे हम अगर बाहर काम कर रहे हैं, उस काम को कृष्ण
कृष्णाइज कैसे करेंगे, कृष्ण को आधारित बना के, कृष्ण को मध्य में रख के कैसे हम उसको निभा सकते हैं। सो जो भी चीज करने के लिए, जो भी चीज हमें करना है, वॉट एवर वी हैव टू डू, वी मस्ट हैव अ पर्पस, बिकॉज टू बी पर्पसलेस इज टू बी पावरलेस। अगर हमारी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो हमारे जिंदगी में अगर पर्पस नहीं है, देन वी बिकम पावरलेस। जो भी शक्ति है वो मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। सो पीस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर हैप्पीनेस, वी हैव लर्नड इन द श्लोका, एंड पीस कम्स व्हेन आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस इज फोकस्ड। जब हम स्थिर बुद्धि, स्थिर मन ऐसे हो जाएंगे तभी हमें शांति मिलेगा। और स्थिर बुद्धि और स्थिर मन मतलब कहाँ पे स्थिर होगा, कृष्ण के पाद कमल पे हमें उसको केंद्रीकृत करना चाहिए। सो वी विल मूव ऑन टू श्लोका नंबर 67। सो श्लोका नंबर 67, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसी। वायुर्नावम इवाम्भसी, जैसे वायु एक नाव को हर के लेके चला जाएगा, वैसे कुछ होगा। क्या बता रहे कृष्णा? व्हाट इज कृष्णा टेलिंग? एज अ बोट ऑन वाटर इज स्वेप्ट अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम्भसी, जैसे वायु नाव को उड़ा के लेके चला जाएगा। Even one of the senses, so we have 5 gross senses, 3 subtle senses, even if one of those senses, एक भी इंद्रिय, हमारे 5 जो इंद्रिय है और 3 स्थूल मतलब 3 सूक्ष्म इंद्रिय है, उनमें से एक भी अगर on which the mind focuses, मतलब हम भौतिक चीजों के ऊपर हम उसको केंद्रीकृत करेंगे, इट कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस। इंद्रियाणाम चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम। तो इंटेलिजेंस कैन बी स्टोलन, कैन बी टेकन अवे, and mind can be swept away, because and due to this senses can go wayward. How? Even if one of the senses is not attached to Krishna, so अगर एक भी हमारी इंद्रिय कृष्ण के ऊपर केंद्रीकृत नहीं है तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। So Prabhupada is telling in the purport, unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, जब तक सारे इंद्रिय सूक्ष्म और जो ग्रॉस इंद्रिया है कृष्ण के ऊपर केंद्रीकृत नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee. एक भी इंद्रिय अगर भटक गया, देखने में क्या है, सुनने में क्या है, थोड़ा सुन लेंगे, कोई अश्लील गाना आ रहा है, थोड़ा सुन लेंगे, उसमें क्या है, बहुत पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर सॉन्ग, lusty song, why not listen to it little bit only, no? So this little bit can cause great disturbance in our life. So we learned from the life of Amrish Maharaj in the previous slokas. We learned, what did we learn? The correct technique for controlling the mind. Savai mana Krishna padara vindayor. So there also, how Maharaj Amrish controlled his mind? By concentrating his mind on the lotus feet of Krishna. So before we move on, we'll just take a few learning points from this particular important shloka that we read now. How we must not dilly-dally with temptation. Thoda, little bit. The little bit is going to be very costly because we do not know when we will slip. कब हम फिसल जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, और जब फिसल जाएंगे हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. So to think we are beyond danger is the greatest danger. जब हम सोचने लगेंगे ना, हाँ हमें कोई अपाय नहीं है, हम मतलब सेफ है, हम थोड़ा बहुत ये कर सकते हैं,
It's the greatest danger to be in false sense of protection. That's the greatest danger. We must never indulge. So we are always busy collecting things in material life. So what is important is we must be collected. मतलब हम केवल इंद्रिय भोग के चीजों को एकत्रित करने में जिंदगी को बिता देते। तो क्या जिंदगी में चाहिए? हम अपने आप को संभाले, हम अपने आप को संतुलित बनाए और वैसे रहे। A little indulgence can also be very dangerous. थोड़ा सा भी चूक हम दे देंगे, माया देवी इज वेरी पावरफुल। सो एक बड़ा सफेद कपड़ा, उसमें एक छोटा सा काला दाग, बहुत मतलब it hits the eye, it is very prominent. So Maya is also like that. थोड़ा सा हम चूक में आ जाएंगे, थोड़ा सा हमारा ध्यान कृष्ण से भटक जाएगा तो माया देवी का प्रवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब इट्स वेरी सिंपल, इफ आई गो अवे फ्रॉम लाइट देन आई एम ऑलवेज इन डार्कनेस। जब मैं रोशनी से के दूर चला जाऊंगा तो मेरा जिंदगी तो अंधकार में ही होगा। देयर इज नो अदर इन बिटवीन थिंग। A titillation in the beginning can be the end game with tribulation. तो जो हमें मजेदार लग रहा है, कुछ ऐसे चीज हम कर रहे हैं, लेकिन अंत में वो हमें बहुत दुख देने वाला है। हानि रस्य उपजायते। If we let our imagination toy with temptation, अगर हम टेम्पटेशन के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे, then we become toy of temptation. तो वो जो हमें टेम्प्ट कर रहा है इंद्रिय सुख, वो हमारी जिंदगी को एक टॉय की तरह हमें खिला देगा। It uses us, it makes us the toy for its activities. So mind dragging intelligence is like the reins pulling the driver. तो कभी भी इंद्रियों मन के कंट्रोल करना नहीं चाहिए। The senses should not control the mind. The mind should control the senses. The higher thing should control the lower thing. And similarly, mind should not control intelligence. Mind should not drag intelligence. Intelligence should control the mind. बुद्धि को मन को मतलब कंट्रोल में लेना चाहिए, ना कि रिवर्स। When the mind takes control of intelligence, then havoc happens. Similarly, इंद्रियों को मन को मतलब कंट्रोल में नहीं लेना है, मन को इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। ऐसे करने से it's called as going from high to low. So otherwise what happens? Mind is like the reins and senses are like the horses. If horse take control of the chariot, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और घोड़ा डिसाइड कर रहा है कहाँ जाना है, एक्सीडेंट तो होगा ही। या फिर जो घोड़े को पकड़ने का लगाम है वो डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, तो भी प्रॉब्लम है। डिसाइड किसको करना है? Who should decide? The person holding the reins. That is intelligence. So intelligence is the driver. The soul is the driver, is the passenger. It must guide the mind and senses and not the reverse way. So in sloka number 2.60, we learned senses carry away the mind. तो पिछले 2 सत्र पहले हमने पढ़ा था कि इंद्रिय मन को हर लेता है, और इस श्लोक में हम क्या पढ़ रहे हैं? मन बुद्धि को हर लेता है अगर थोड़ा सा भी हम चूक दे देंगे। So it is something that Krishna is warning us that we must avoid. So we'll move on to sloka number 68. Sloka number 68 is Tasmad Yasya Mahabaho. It's on your screen. Nigritani Sarvashah Indriyan Indriyartebhyas Tasya Prajna Pratishtitha. Again and again Krishna is telling Tasya Prajna Pratishtitha. This is how a person can become fixed in consciousness, fixed in intelligence, fixed in his mind. तो बार बार कृष्ण जवाब दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन ने एक सवाल पूछा और कृष्ण ने लगातार आंसर देना प्रारंभ किया है। सो व्हाट इज ही टेलिंग? क्या कृष्ण भगवान बता रहे? सो वी लर्नड इन द प्रीवियस श्लोका द करेक्ट टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। 67 में हमने पढ़ा सही
कार्यकुशलता क्या है जो मन को कंट्रोल में रखने के लिए सहाय करेगा? दैट इज बाय सवाई मन कृष्ण पदारविंदयोर. सो इन दिस श्लोका अगेन कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट स्टडी इंटेलिजेंस. तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में भी स्थिर बुद्धि के बारे में, प्रज्ञ प्रतिष्ठिता के बारे में बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज इट टेलिंग? देयरफॉर, तस्मात्, यस्य महाबाहो, ओ माइटी आर्म्ड, हे महाबाहो, ऐसे, वन whose senses are restrained from their objects. तो इस तरह निगृतानि सर्वशः, तो इस तरह जब हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे, इज सर्टेनली ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, तो वो जरूर स्थित प्रज्ञ होता है, प्रज्ञ प्रतिष्ठिता होता है. So he's fixed in his intelligence. He has steady intelligence. He's got a steady mind. So as enemies are curbed by superior forces, एक शत्रु को हराने के लिए एक ऊपरी शक्ति चाहिए हमें, मतलब उससे ज्यादा शक्ति चाहिए. It can be physical strength, it can be mental strength. So you must understand that. See again here Krishna, almost he is pulling Krishna Arjuna's leg here. He's talking of महाबाहो, but लेकिन केवल महाबाहो होने से काम नहीं चलेगा, because you can have a very strong body, but if you have a weak mind, फिर भी हम हार जाएंगे जिंदगी में. तो देह बहुत दृढ़काय है, लेकिन मन बहुत ही मतलब वीक है, तो जिंदगी की दौड़ में हम हार जाएंगे. So many times we see a strong mind can overcome even a physically strong person. एक व्यक्ति जो मतलब जिसका मन बहुत ही स्ट्रांग है, वो एक फिजिकली स्ट्रांग पर्सन को भी डिफीट कर सकता है. How? Because it is a higher sense, because it is greater than the body. So as enemies are curbed by superior force, similarly senses can be curbed not by any human endeavor. तो इंद्रियों का दमन करना, it is not possible simply by human effort. That's why we said determination is not the only factor. It is required, but what is required more than that? Only by keeping them engaged in the service of the Lord. That means when we are keeping our mind and senses, इंद्रिय और मन और बुद्धि को कृष्ण भगवान की सेवा में हम उसको लगाएंगे, that means it is touching Krishna. I mean, it touches Krishna, everything is auspicious. जब मन, बुद्धि और इंद्रियों को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तो क्योंकि वो कृष्ण के संबंध में है, तो सब कुछ शुभमय होगा हमारी जिंदगी में. Only by Krishna consciousness is one really established in intelligence. So what is real intelligence? Real intelligence is to be Krishna conscious. सही बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना. And one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master. Not that I will practice, I have to be focused on Krishna, I will do it myself. No. We must take guidance from a spiritual master. एक आध्यात्मिक गुरु से, दीक्षा गुरु से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए. शिक्षा गुरु से मार्गदर्शन ले सकते, शिक्षा गुरु से हमें दीक्षा गुरु से दीक्षा लेना चाहिए. So one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master, and such a person is called sadhaka. ऐसे व्यक्ति को साधका कहते हैं. So we have about 5 minutes time. We will try to do one more shloka. I think we can squeeze in. Shloka number 69. Yanisha sarvabhutanam tasyam jagrati samyami. On your screen now. Yasyam jagrati bhutani sa nisha pashyato mune. So what is night for all beings? या निशा सर्वभूताना, जो बहुतेक लोगों के लिए रात्रि का समय है. इट इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर सेल्फ कंट्रोल. तस्याम जागृति संयमी, तो वो समय है एक आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने वाला इंसान को जागने का. एवरीबडी इज स्लीपिंग एट
3:30 in the morning, whereas a devotee is awake at 3:30 in the morning and getting ready to go to मंगलारती. मंगलारती जाने के लिए भक्त 3:30 बजे उठ गया है, लेकिन पूरी दुनिया सो रहा है. And at the time of awakening of all beings is night for the introspective stage. Yasyam jagrati bhutani sa nisha pashyato munehe. तो जब लोक सो जाता है, एक मुनि उठा रहता है, और जब लोक जाग जाता है तो एक मुनि, मतलब he will be in a state of supta. Supta means he will be in the state of rest. It is night for the introspective sage. Sa nisha pashyato munehe. So there are two classes of intelligent men. So in this shloka we are coming to know दो तरह के बुद्धिमान लोग हैं. One is intelligent in material activities, जो भौतिक गतिविधियों में बहुत ही स्मार्ट है. And another one is introspective and awake to the cultivation of self-realization. दूसरी तरह का इंटेलिजेंस है one who is looking after his spiritual progress. That is also one type of intelligence. वो भी एक तरह का बुद्धि है. And which is the higher intelligence we all know by now. The sage feels transcendental pleasure in the gradual advancement of spiritual culture. तो मुनि आत्माराम होता है अपने आध्यात्मिक प्रगति में जब वो आगे बढ़ रहा है. So, and whereas the man in materialistic activities, being asleep to self-realization, dreams of varieties of sense pleasure. लेकिन जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों में या भौतिक विषयों में इंटेलिजेंट है, वो हमेशा भौतिक जगत में कैसे हम आगे बढ़े, हमारा संपत्ति कैसे बढ़ाए, हमारे मतलब इंद्रिय भोग के वस्तु कैसे संग्रहित करें, उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा हमारी जिंदगी में हम खरीदे, इसके बारे में वो सोचता रहता है. हमेशा वो स्वप्न देखता रहता है. He will be dreaming. So the introspective man is always indifferent to materialistic happiness and distress. लेकिन एक संयमी, एक मुनि, introspective man, that is what is मुनि, वो हमेशा भौतिक प्रगति, भौतिक दुख, भौतिक गतिविधियों के बारे में indifferent रहता है. Indifferent doesn't mean that he is going to be careless, he is irresponsible. No, अपना जो भौतिक कार्य है वो करेगा, जितना मात्रा में करना चाहिए उतनी मात्रा में वो करेगा. So what we have learned in previous shlokas where we must be watchful about what we are watching. हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, उसके बारे में हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एक भी अगर इंद्रिय भौतिक विषय में लग गया तो हम मतलब फिसल सकते हैं. The best time to win a battle against temptation is before it even begins. तो temptations को कैसे नियंत्रण में लेके आना है, जब temptation आएगा उससे पहले ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए. We must be already ready for it. That is the best way to battle with temptation. इंद्रिय आराम, इंद्रिय भोग के विषय जब हमें खींचना प्रारंभ करेगा उससे पहले ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए. So we must use all the technology, we must not become a victim of it. जैसे कि मोबाइल फोन हम यूज कर सकते हैं, but we must know for what it must be used. So we will stop here for today. We will try to meet tomorrow. Thank you very much. I will send you the link if it is there tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.